سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سندھ میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ کاروبار شام 6 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ریسٹورانٹس رات 10 بجے تک ہوم ڈیلیوری دے سکیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ مزارات بھی بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ کراچی سے ہمارے نمائندگان سمین نواز اس وقت موجود ہیں صدر مارکیٹ میں، وہاں سے اپڈیٹ کریں گی۔ محمود ریاض اس وقت طارق روڈ پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے، جبکہ نوید صدیقی اس وقت گلشن مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانیں گے۔ سمین، پہلے آپ کی جانب آتے ہیں، یہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے صدر بازار میں، اور جو یہاں پر تاجر ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے اس سمارٹ لاک ڈاؤن پر؟ جی بالکل، دیکھیے آج جس طرح سے احکامات سامنے آئے ہیں، صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کاروباری اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے، اور کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز جو ہیں اس کے پیش نظر یہ تمام تر احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم صدر زینب مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میرے کیمرہ مین عمران یامین اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مین زینب مارکیٹ کے اوپر اکثر و بیشتر اتنا زیادہ رش نہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ آج جلدی مارکیٹ بند ہونی تھی، لہٰذا لوگوں کو شاید یہ کچھ احساس ہوا کہ شاید مارکیٹیں اب جلدی بند ہو جایا کریں گی تو خریداری میں مشکلات ہوں گی۔ اس وقت انتہا سے زیادہ رش دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ دکانیں ہمیں اس وقت بھی کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ 6 بجے کا وقت مقرر تھا تمام تر دکانیں بند کر دینے کا۔ کچھ دکانیں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ یہاں پر ہمیں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ پولیس کی موبائلیں یہاں پر گشت کر رہی ہیں اور وہ مارکیٹ کو بند کروانے کے لیے ہوٹرز بھی بجاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کا جو ایک بہت بڑا ہجوم ہمیں اس وقت یہاں پر نظر آ رہا ہے، وہ ان تمام تر SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جن کے لیے کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے جس کے تحت حکومت سندھ کی جانب سے یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بے انتہا رش اس وقت صدر زینب مارکیٹ میں لوگوں کا موجود ہے، جنہوں نے نہ ماسک استعمال کیے ہوئے ہیں، نہ سماجی فاصلوں کا خیال کیا جا رہا ہے، بلکہ مارکیٹ بند ہونے کے اوقات میں بھی وہ خریداری میں ہمیں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سمین، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ طارق روڈ پر اس وقت محمود ریاض موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ محمود ریاض، بتائیے گا اس وقت یہاں پر رش کی کیا صورتحال ہے، اور جو تاجر برادری ہے، جو یہاں پر دکاندار ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ محمود ریاض، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ محمود ریاض سے دوبارہ اس وقت ہم طارق روڈ کی مرکزی تجارتی جو مارکیٹ ہے، جہاں پر تقریباً 50 سے زائد مارکیٹ ہے، لیکن یہاں پر دیکھا جائے 6 بجتے ہی جو ہے وہ پولیس نے گشت شروع کر دیا اور حکومت کی طرف سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ دکانیں بند کرتے کرتے بھی ٹائم لگتا ہے، تو جو بڑی دکانیں انہوں نے شٹر گرا دی ہیں، لیکن کچھ دکانوں میں ابھی بھی گاہک موجود ہے۔ دوسری طرف تاجر رہنماؤں کو جو کہنا تھا کہ 8 بجے بند کیا جائے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی بالآخر حکومت کے آگے گھٹنے ٹیک دی، اس لیے کہ 6 بجے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اکثر دکانیں جو ہیں ان کو بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت بھی پولیس مستقل گشت کر رہی ہے اور لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر رہی ہے کہ دکانیں جو بند کی جائیں، تو یقیناً SOPs کی جو خلاف ورزی کو برداشت حکومت نہیں کرے گی۔ ان کا سختی سے کہنا ہے کہ جس طریقے سے کورونا کی دوسری لہر آئی ہے، تو اس وقت طارق روڈ، جہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا شہر کے تجارتی مراکز میں سے ایک ہے اور یہاں پہ خواتین اور دیگر شاپنگ سینٹر ہیں، تو اس وقت یہاں پر بازار جو ہیں وہ بند ہونے کے شروع ہو چکے ہیں اور پولیس جو ہے ان میں بند کرا رہی ہے، اور لوگ جو ہے جن دکانوں میں موجود ہیں وہاں سے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد ان مارکیٹوں کو بند کرایا جا سکے۔ ٹھیک ہے محمود ریاض، ساتھ رہے گا۔ نوید صدیقی گلشن مارکیٹ میں موجود ہیں۔ نوید، آپ بتائیے گا آپ کیا صورتحال، کیا مناظر یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کیا مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں 6 بجنے کے بعد؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گلشن اقبال کے علاقے موتی محل کے قریب ایک مارکیٹ۔ جی، نوید صدیقی سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے۔ عادیہ ناز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہیں، ان سے مزید صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عادیہ، اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا، مزارات بھی بند کرنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں، یہاں پر کیا صورتحال ہے ابھی؟ کورونا کی
लहर के खदशे के बाद अहकाम जारी किए गए थे मज़ारात बंद किए जाने के। कहा गया था कि सिंध भर के तमाम मज़ारात को आज 6 बजे से बंद कर दिया जाएगा। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक 31 जनवरी तक तमाम मज़ार, सिंध के तमाम मज़ारात जो हैं वो बंद रहेंगे। इस वक्त मैं कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मनाज़र देखने को मिल रहे हैं उसमें ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन अंदर जा रहे हैं और कुछ जो है वो बाहर आ रहे हैं। ताहम कहा यह गया था कि 6 बजे मज़ारात जो हैं वो बंद हो जाएंगे। उनमें अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार था, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार था और शाह लतीफ़ भटाई के मज़ारों के हवाले से ये इत्तलात आई थी कि 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। इस वक्त पुलिस यहाँ पर मुझे नजर नहीं आई है और मज़ार इंतजामिया की जानिब से भी इन अहकामात को फिलहाल जो है वो नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि ज़ायरीन की मज़ार के अंदर जाने का सिलसिला जो है वो जारी है और मज़ार से बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है आदिया नाज, आप साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया आदिया नाज, इस बारे में हमें तफसीलात से आगाह करी थी। महमूद रियाज आपका बहुत शुक्रिया, समीर नवाज़ आपका बहुत शुक्रिया और इसके अलावा गुलशन मार्केट से हमें अपडेट कर रहे थे नबीस सिद्दीकी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की, जिनका ये कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर हम खुद फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों से मुतालिक अपना फैसला कर सकते हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद किए, फ़िलहाल फैसला हुआ है कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी की तातीलात होंगी। तालीमी साल में बच्चों ने जो सिलेबस होता है उसको पूरा करना तो दूर की बात है, हमने जो सिलेबस कम किया था वो कम किया हुआ सिलेबस में बच्चे पूरा नहीं कर सके, के लिए वो स्कूल गए हैं। तो हमारी ये राय थी जिस पर इत्तेफाक नहीं हुआ कि पहले मरहले में अगर बहुत ज़रूरी है बंद करना तो हम प्राइमरी स्कूल बंद कर देते हैं जिसमें छोटे बच्चे जाते हैं, और जो सेकेंडरी स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चलने देते हैं और वहाँ पर भी जो ऑनलाइन चलाना चाहते हैं ऑनलाइन चलाएं, जो फिजिकली चलाना चाहते हैं फिजिकली चलाएं। लेकिन इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ और फिलहाल ये फैसला हुआ है कि 26 फरवरी से जो 24 दिसंबर तक स्कूल वो चलाएंगे। स्कूल खुले होंगे लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है 15 दिन की तातीलात होगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर हालात ठीक हो गए तो स्कूल खोल लेंगे। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अज़हर ने चीनी की कीमत में कमी का दावा कर दिया। कहते हैं कि चीनी की एक्स मिल रेट और होल सेल रेट में 10 से 12 किलो रुपये कमी आ गई है। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इम्पोर्टेड चीनी इस वक्त तकरीबन 4000 यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ऊपर 68 रुपये कीमत, 68 रुपये के केजी के ऊपर ये चीनी जो है वो मौजूद है। इन सारे इक़दामात के बाद जो एक अच्छा हमें चीज़ देखने में ये आई कि पिछले 10 दिन के अंदर चीनी की जो एक्स मिल और वेयर हाउस रेट है, यानी कि जो मिल का रेट होता है जिसके बाद वेयर हाउस में जाता है और आगे रिटेल में फिर फाइनली जाता है, पिछले 10 दिन के अंदर उसमें 10 से 12 रुपए किलो की कमी आई है। और हम समझते हैं कि इसका चंद दिन का लैग होता है रिटेल के ऊपर, 5-6 रुपए किलो रिटेल के ऊपर भी फ़र्क आ गया और अगले 3-4 दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि मज़ीद भी फ़र्क आ जाएगा। हुकूमती वज़रा ने दावा किया है कि चीनी सस्ती हो गई, लेकिन मुल्तान में चीनी का रेट कम नहीं हो सका। अब भी मुल्तान में चीनी 93 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात जान लेते हैं, गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा क्या कीमत है यहाँ पर चीनी की? जी बिल्कुल, हुकूमती वुज़रा की जानिब से एक दावा सामने आया है कि उन्होंने चीनी की कीमतें कंट्रोल कर ली हैं और अब जो है आम मार्केट में चीनी जो है आवाम को सस्ते दामों मैसर है। हुकूमती वुज़रा की जानिब से ये कहना है कि चीनी आम मार्केट में इस वक्त जो है 87 रुपये किलो के हिसाब से मैसर है, लेकिन मुल्तान की जो मार्केट है वो सूरत हाल कुछ और ही बता रही है। दावा एक जानिब है और यहाँ पर जो कीमतें हैं वो दूसरी जानिब हैं। आम मार्केट में कीमतों में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी जो है मुल्तान की मार्केट में चीनी 93 से 95 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। और अगर बात की जाए जो हुकूमत की जानिब से सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, वहाँ पर भी जो चीनी है वो 82 से 83 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद हम यहाँ पर जो ख़रीदार आए हुए हैं हम इनसे ही जानते हैं। आप बताइएगा, यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं, चीनी अभी ख़रीदी है, कितने रुपये किलो ख़रीदी है? 93 रुपये भजन। अच्छा, कोई कमी आई है रेट में पहले के मुकाबले? बस अभी कुछ फ़र्क तो है ना, कुछ फ़र्क है। अच्छा, 87 मिली है या ये 93 मिली है? 93। बिल्कुल, देखिए आपने अवाम से ही सुना है और एक जानिब हुकूमती वुज़रा के दावे हैं और दूसरी जानिब ये अवाम ही बता रही है कि अभी भी जो चीनी का रेट है वो कम नहीं हो पाया है। ये जो है चीनी मुल्तान की मार्केट में 87 के बजाय अभी भी जो है 93 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जी
वफाकी वज़रा के सस्ती चीनी के दावे बराए नाम निकले। मार्केट में बारीक और हल्की क्वालिटी की चीनी 83 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त, जबकि अच्छी क्वालिटी की चीनी 100 रुपये से लेकर 110 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। सूरत हाल क्या है, उस्मान इलियास से तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। लाहौर टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ और जैसा कि वफाकी वज़रा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीनी की जो कीमत है उसको कंट्रोल किया और वो कीमत जो मार्केट में है 68 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। अच्छा कि मार्केट की जो सूरत हाल से इससे बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि जो सस्ती और हल्की क्वालिटी की चीनी है वो 83.50 रुपये की कीमत के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो अच्छी क्वालिटी की मोटी चीनी है जिसकी मिठास भी ज़्यादा है वो तकरीबन 100 रुपये से लेके 105 और 110 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, जो कि मार्केट में 100 और 105 रुपये के दरमियान जो है कीमत फ्लक्चुएट कर रही है। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पर पैकिंग में चीनी मिलती है वहाँ पे 110 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। तो लोगों की जानब से ये कहा जा रहा है कि जो 83 रुपये वाली चीनी है उसकी कीमत कम है अगर, तो उसकी क्वालिटी भी उस कदर लो है और इतनी बारीक है और ना ही उसमें मिठास है। तो इस हवाले से जब वो दूसरी चीनी लेते हैं तो वो उनको 100 और 105 रुपये के दरमियान मिलती है। और इस हवाले से जो हुकूमत के जाने से ये दावा किया जा रहा है कि जो चीनी सस्ती है 68 रुपीज़ किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है वो अभी तक उन्हें मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और वो ना ही जो गवर्नमेंट की जानिब से सस्ता बाज़ार लगाए गए हैं, मार्केट्स लगाई गई हैं, ना तो वो वहाँ पे अवेलेबल है, ना ही यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल है, और ना ही जो आम मार्केट है वहाँ पर जो है इस कीमत पे चीनी मिल रही है। जबकि चीनी के जो दो कीमतें हैं, एक जो लो क्वालिटी है वो 81 से 83 रुपये और जो अच्छी क्वालिटी की चीनी है वो 100 से 110 रुपये के दरमियान जो है मार्केट में दस्तयाब है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़रा के दावे अपनी जगह, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा रही। पाकिस्तान में अक्टूबर में महंगाई की शरह 8.9% रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की शरह तो 17% तक पहुँच गई। भारत में महंगाई की शरह फ़ीसद श्रीलंका में 7.64%, इंडोनेशिया में 1.4%, चीन में 8.5% और जनूबी कोरिया में 8.1% थी। हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है और मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, ताहम हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा रही। पाकिस्तान में अक्टूबर में महंगाई की शरह 8.9% रही, जबकि खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की शरह 17% तक जा पहुँची है। खित्ते के दीगर ममालिक की बनिस्बत पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका में 7.6% महंगाई की शरह इस अरसे के दौरान देखी गई, जबकि इंडोनेशिया में 1.4% रही, चीन में 8.5% और जनूबी कोरिया में 8.1% थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने MTI कौंसिल की मंजूरी दे दी है। कौंसिल मेंबर्स 3 से कम और 7 से ज़ायद नहीं होंगे। कानून वफाकी दारुल हुकूमत के हस्पतालों के लिए होगा। MTI कानून के तहत तमाम इख्तियारात बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को दे दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी काबीना ने MTI कौंसिल की मंजूरी दे दी है। कौंसिल मेंबर्स 3 से कम और 7 से ज़ायद नहीं होंगे। ये कानून वफाकी दारुल हुकूमत के हस्पतालों के लिए होगा। MTI कानून के तहत तमाम इख्तियारात बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को दे दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, नया कानून लागू किया गया है जिसके तहत बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं। वफाकी काबीना ने MTI कौंसिल की मंजूरी दे दी है और इस कौंसिल मेंबर्स 3 से कम और 7 से ज़ायद नहीं होंगे। ये कानून वफाकी दारुल हुकूमत के हस्पतालों के लिए होगा। सबा बजीर से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना में आज अहम इजलास हुआ है। उसमें MTI की कौंसिल की मंजूरी दे दी गई है। कौंसिल मेंबर 3 से कम और 7 से ज़ायद नहीं हो सकते और कानून वफाकी जो दारुल हुकूमत के अस्पतालों के लिए ये होगा। और MTI कानून के तहत तमाम इख्तियारात जो हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को दिए जाएंगे। अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट माली और इंतजामी इख्तियारात में बाइख्तियार होंगे और महकमा हेल्थ के डॉक्टर भी इन अस्पतालों में काम करेंगे। एक के तहत टीचिंग अस्पतालों में प्रिंसिपल और MS के ओहदे तहलील कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। चौधरी बरादरान ने मियाँ नवाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया।
चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अली अकबर, बताइएगा इस टेलीफोनिक राबते के हवाले से। ये सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को लंदन में टेलीफोन किया गया। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मियां नवाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया गया, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने भी नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से नवाज शरीफ को बताया गया कि उनकी वालदा से जो है वो 2 मुलाकातें थी। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि वो इंतहाई मिलनसार और शफीक खातून थी, जबकि इस मौका पर स्पीकर पंजाब असेंबली और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से नवाज शरीफ की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया गया, जिस पर नवाज शरीफ ने उनको बताया कि उनके गुर्दों में इन्फेक्शन है, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया गया और चौधरी शुजात हुसैन के लिए दुआ की गई। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी फ़ोन किया और मियां नवाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर उनका कहना था कि मां का इंतकाल औलाद के लिए बड़ा सानहा होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोन किया है और मियां नवाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि मां का इंतकाल औलाद के लिए बहुत बड़ा सानहा होता है। पंजाब हुकूमत ने मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। पैरोल पर रिहाई शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत पहुंचने पर दी जाएगी। पैरोल पर रिहाई की मंजूरी पंजाब काबीना से ली गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी गई है। पैरोल पर रिहाई शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत पहुँचने पर दी जाएगी और इस पैरोल पर रिहाई की मंजूरी पंजाब काबीना से ली गई है। पीटीवी ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स से मुआहदा कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीटीवी की जानिब से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को की जाने वाली अदायगी पर एनओसी के इजरा की मंजूरी भी दे दी गई है। पीटीवी ने मुआहदे के तहत भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को $6,32,500 की अदायगी करनी है। तफसीलात जानेंगे ज़िशान भट्टी से। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए पीटीवी ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में भारतीय ब्रॉडकास्टर्स जो हैं 10 स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स उनके साथ मुआहदा किया था, जिसके तहत जो पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज हुई थी और इसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग वो दिखाई गई थी और वज़ारत इत्तलात को ज़राए के मुताबिक एतमाद में नहीं लिया गया पीटीवी की जानिब से, क्योंकि अब अदायगियाँ बंद है। भारत के साथ जो हमारे तल्लुकात तजारती खत्म होने के बाद अदायगियाँ नहीं की गई, तो भारत की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की जानिब से बारहा वो रकम मांगी जा रही है, जिसपे पीटीवी ने ये मामला वज़ारत इत्तलात के जरिए आज काबीना में पेश किया और वफाकी काबीना ने बिलआखिर इसकी मंजूरी दे दी और ये कहा गया है कि जो रकम अदा करनी है $6,500 जो कि लगभग 10 करोड़ के करीब बनती है, वो अदा कर दी जाए। चूँकि भारत के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात न होने के बाद तमाम किस्म के वहाँ पे अदायगियाँ बंद, इसलिए अब आइंदा से जो है अदायगियों के हवाले से लाइम तय किया जाएगा। लेकिन अभी जो मुआहदा हुआ था वज़ारत इत्तलात को एतमाद में लिए बगैर उसकी इजाज़त दे दी गई है कि रकम की अदायगी कर दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पीटीवी का भारतीय ब्रॉडकास्टर से मुआहदा 1 साल पुराना है। भारतीय ब्रॉडकास्टर से मुआहदा पीएसएल दिखाने के लिए किया गया। शिबली फराज का कहना था कि स्पोर्ट्स चैनल के मालिकान भारतीय हैं, टूर्नामेंट दिखाने के लिए उनसे मुआहदा मजबूरी थी। पेमेंट है हमने मुआहदा कोई किया है पीटीवी का, तो ऐसा नहीं है। ये वो पेमेंट थी जो कि पिछले साल सितंबर में हुआ था, जिसमें कि प्रीमियर लीग के कवरेज के लिए मुआहदा हुआ था। ये जो पेमेंट है जो कि मेरा ख्याल है कोई $6,47,000, ये बुनियादी तौर पे जो आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स चैनल हैं, 10 स्पोर्ट्स हो गया या स्टार, ये सारे जो चैनल्स हैं ये इनकी ओनरशिप इंडियंस की है। अब अगर हमने स्पोर्ट्स दिखाना है तो जो उस वक्त जो फैसला किया गया था और जिसका फिर एनओसी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दिया, क्योंकि उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी, वो ये था कि जब आप कोई कवरेज करते हैं तो उसमें फिर कोई भी चीज़ हो जिसके के मालिकान इंडियंस हों, तो उसका मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन होती है जिसमें कि आपको उनके साथ इंडियंस के साथ नहीं, आपको उस फर्म के साथ मुआहदा करना पड़ता है। तो ये एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी जो कि हम कानूनी तौर पे हम मजबूर थे कि हम ये पेमेंट करें।
وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی کا بھارتی براڈ کاسٹر سے معاہدہ 1 سال پرانا ہے۔ بھارتی براڈ کاسٹر سے معاہدہ پی ایس ایل دکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شبلی فراز نے کہا کہ سپورٹس چینلز کے مالکان بھارتی ہیں، ٹورنامنٹ دکھانے کے لیے ان سے معاہدہ مجبوری تھی۔ واضح رہے کہ پی ٹی وی نے بھارتی براڈ کاسٹر سے یہ معاہدہ کیا تھا جس کی ادائیگی کی جانب وزیراعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصل آباد ٹول پلازے پر بد انتظامی کے معاملے پر وفاقی وزراء مراد سعید اور معاون خصوصی ندیم افضل چند میں تلخ کلامی ہو گئی۔ ندیم افضل چند کی جانب سے تنقید پر مراد سعید آگ بگولا ہو گئے۔ وزیراعظم نے دونوں کو خاموش کرا دیا۔ اس اجلاس کا مزید احوال جانیں گے اویس کیانی سے۔ اویس بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب ندیم افضل چند نے فیصل آباد موٹر وے پر گاڑیوں کے جو بد انتظامی ہے وہاں پر ٹول پلازا پر، وہاں پر اس کے باعث جو رش لگ جاتا ہے اس کے ایک توجہ جو ہے کابینہ اجلاس کی مبذول کرائی، اور انہوں نے کہا کہ کافی زیادہ جو ہے بد انتظامی ہے جس کی وجہ سے گھنٹوں لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، جس پر فوری طور پر جو ہے اس کا رپلائی کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے چند صاحب، اگر آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے تو آپ پلیز یہ ایسی کمنٹس نہ کیا کریں، جس پر ندیم افضل چند نے کہا کہ یہ کچھ سنی سنائی بات نہیں ہے بھائی، یہ خود جو ہے میرے ساتھ بیت چکی ہے، میں اس مشکل سے گزر چکا ہوں اور میں خود وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، اور آپ جو ہے بجائے کوئی معاملہ حل کرنے کے جو ہے تنقید برداشت کرنے کو اور معاملہ حل کرنے کے بجائے آپ دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے ندیم ٹھیک ہے ویس، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے بچوں اور خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کا سخت نوٹس لے لیا۔ کابینہ نے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 اور تعزیرات پاکستان ترمیمی آرڈیننس 2020 کی وصولی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے بچوں اور خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کا سخت نوٹس لیا۔ کابینہ نے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 اور تعزیرات پاکستان ترمیمی آرڈیننس 2020 کی وصولی منظوری بھی دے دی۔ دیگر اہم معاملات جن پر بحث کی گئی اور اس حوالے سے بھی کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خصوصی طور پر وزیراعظم نے بچوں اور خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کا نوٹس لیا۔ کابینہ نے اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 کے مسودے کی منظوری دی۔ کراچی کے علاقے کورنگی پی این ٹی کالونی میں گودام میں آگ لگ گئی۔ 3 گھنٹے سے زائد وقت ہو گیا ہے، آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، جاوید قائم خانی سے جان لیتے ہیں۔ جاوید بتائیے گا۔ بالکل جی، تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ پی این ٹی کالونی سوسائٹی کورنگی کا ایریا ہے، یہاں پر جو ہے وہ کپڑے کے اور یان یعنی کہ دھاگا، اسپننگ مل کا دھاگا جو تھا اس کا ایک ویئر ہاؤس گودام تھا جس کی شیڈ کے اوپر جو ہے وہ ویلڈنگ کا کام جاری تھا۔ ویلڈنگ کے جو پارٹیکلز یعنی کہ شعلے جو تھے گرنے سے یہ ممکنہ طور پر آگ لگی، ایسا کہنا ہے عینی شاہدین کا، لیکن میرے عقب میں کیمرہ مین آپ کو دکھایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ 3 بجے جیسی لگی تھی، اس کی اتنی شدت تھی کہ اس کا جو مکمل شیڈ اوپر موجود تھا وہ بھی آگ کی شدت کے باعث جو ہے پگھل کر نیچے چلا گیا ہے۔ آگ کے شعلے اب بھی جو ہے وہ ان شیڈز کی دراڑوں سے جو ہے وہ بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی تقریباً 3 اور ایک جو ہے وہ ایک پرائیویٹ فیکٹری ہے، اس کی فائر بریگیڈ کا ٹینڈر جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ 4 یعنی کہ فائر بریگیڈ کے براؤزر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر جو ہے وہ 3 اطراف سے قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب اس کے بالکل برابر میں جو ہے ایک اور فیکٹری ہے، وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً ہوزری کی فیکٹری اور کپڑے کا ہی کام کیا جاتا ہے۔ فائر بریگیڈ کو جیسے اطلاع ملی تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس فیکٹری کو بچانے کے لیے اس کی دیوار پر جو آگ جا رہی تھی اس کو قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے ناگن چورنگی پر واقع سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال 4 ماہ سے بند ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائے جانے والے اس ہسپتال کا بجٹ 4 کروڑ سے بڑھا کر 44 کروڑ تو کر دیا گیا، لیکن یہ جاری نہ ہو سکا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عرفان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائے گا کیا وجہ ہے کہ اس ہسپتال کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں جی، ہماری جو محکمہ ہے سندھ کے ذرائع سے بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ آڈٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام جو ان کا فنڈ تھا یہ جاری نہیں کیا گیا تھا، تاہم فنڈ جاری نہ کیے جانے کے باعث اور یہ جو ہسپتال ہے یہ بند ہونے کے باعث تمام تر اس کا جو نقصان ہے وہ مریضوں کو
हो रहा है और जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि अस्पताल अभी तक बंद है। पहले इब्तदाई तौर पर इस अस्पताल की तमाम OPDs को बंद किया गया था, उसके बाद जो इमरजेंसी थी वो भी यहाँ पर बंद कर दी गई है। ये अस्पताल ना सिर्फ ये कि एक बड़ा अस्पताल है, 400 बेड का जापान की जो NGO थी जायका, उस जायका के ताबन से अस्पताल को 2016 में बनाया गया था और ये अपनी नौयत का जदीद तरीन अस्पताल माना जाता था। ताहम अब जो इस अस्पताल के लिए महकमा सेहत सिंध की जानिब से फंड फराहम नहीं किया जा रहा, उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी तस्दीक इंतजामिया ने। ठीक है इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में पुलिस कांस्टेबल 1.5 साल की तनख्वाह से महरूम हो गई। पुलिस कांस्टेबल अफशा ने अकाउंटेंट और उसके साथियों की जानिब से हिरासत करने का इल्ज़ाम लगा दिया। खातून कांस्टेबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पिछले 1.5 साल से मेरी तनख्वाह मेरा हक मुझे नहीं मिल रहा। अकाउंटेंट शर्जील और उसके हवारी बाबर मेरी तनख्वाह जो कि मेरा कानूनी हक है मुझे नहीं देते और मुझे तरह तरह की डिमांड, रिश्वत और दूसरी गैर ज़रूरी और गैर इखलाकी जैसी डिमांड करते हैं। मैं इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं जिसके ज़िम्मेदार ये जालिम जाबिर लोग हैं। मैं सिंध धरती की बाइज़्ज़त बेटी जनाब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब CM सिंध, जनाब DG SMBR साहब और जनाब डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स से मोतबाना अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि इन जालिम जाबिर लोगों के खिलाफ कानूनी मुकदमा और एक्शन लिया जाए और मुझे जल्द अज जल्द मेरी तनख्वाहें बाइज़्ज़त तरीके से मिल जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस पैगाम के ज़रिए इंसाफ मिलेगा, कानून का बोल बाला होगा। और कल सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। इसके बाद दिसंबर के वस्त में बारिशों का स्पेल आएगा। आलूदा फ़ज़ा की बिगड़ती सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होगी। रोज़ीना अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में सुरमई बादलों के पहरे, रिमझिम फवार और पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सर्द हवाओं के थपेड़ों के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर खालिद मलिक का कहना है कि कल लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहलम समेत कई इलाकों में बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला साउथ पंजाब में भी दाखिल होगा। कल इसका सिलसिला थोड़ा सा साउथ की साइड पे भी जाएगा, जिसमें आपका जो फैसलाबाद है, सरगोदा है, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, वहाँ तक ये मार्क करेगा और वहाँ तक रेन होने के चांसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के भी बेशतर इलाकों में बारिश की तवक्को है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कल कई पहाड़ी सिलसिलों पर मजीद अच्छी बर्फबारी की तवक्को है। मलका कौसार, मरी और नथिया गली में भी सरमा की पहली बर्फबारी की तवक्को है। स्नोफॉल की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा और वो तमाम पहाड़ी सिलसिले जिन पे स्नोफॉल हुई है और मज़ीद अभी होगी, जिसमें कागान, नारान, मालम जब्बा और चतराल और GB के एरियाज़ हैं। लियात में भी और स्नोफॉल हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुज़रे सेहत स्मोग में कमी होगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने ये भी बताया कि दिसंबर के वस्त से बारिश का जोरावर अच्छा सिलसिला मुतवक्के है। सर्दी गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज्यादा होगी। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। आम आदमी के लिए खुश्क मेवाजात खाना मुश्किल हो गया। बादाम छिलकों वाला 1000, छिला हुआ 1600 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। कुछ शहरियों ने सर्दी से बचाने के लिए गुड़ को तरजीह दी है। इस्लामाबाद से रोज़ीना अली की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है, लेकिन दिमाग की तेजी और एनर्जी के लिए तो बादाम ही जरूरी है, जिसके दाम इतने ज्यादा हैं कि शहरियों के लिए सर्दी में बादाम खरीदना और खाना ही मुश्किल हो गया है। शहर इक्तदार में बादाम छिलकों वाला 1000, जबकि छिला हुआ बादाम 1600 रुपए किलो में दस्तयाब है। ना ही नहीं, अखरोट 400 से 600 रुपए किलो, अंजीर 1000 रुपए किलो, काजू 2400 रुपए किलो और पिस्ता 1600 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। मूंगफली 320 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं दाल सब्जी खाना मुश्किल है यहाँ, खुश्क मेवाजात कैसे खाएंगे। कुछ शहरियों ने सर्दी में गुड़ खाने को तरजीह दी। वही आदमी इस्तेमाल करेगा जो दवाई के तौर पर इस्तेमाल करता है। महंगाई इतना है। गुड़ लिया ना गर्म है, हाजमा भी करता है, बस गुड़ खा लेंगे। मेवाजात हमारे मुल्क में ही बनते हैं, अदरवाइज़ तो आम आदमी नहीं परचेज कर सकता। रोटी और दाल पूरी करेगा या ये मेवाजात खाएगा। हम मूंगफली नहीं ले जा सकते, अभी तक ना लेके गए।
शहर इक्तदार में खुश्क मेवाजात सर्दी से बचाव का बेहतरीन तोड़ है, ताहम इनकी दुगनी कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। दुकानदार कहते हैं कि खुश्क मेवाजात के हैं मुनासिब दाम, लेकिन शहरियों का अब भी है अदम इत्मीनान। कहते हैं सब्जी खाना मुश्किल है, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सर्दी से बचाव के लिए कुछ और देखना पड़ेगा। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। रेशम के कपड़े, रेशम की शॉलें और रेशम से बनी अशिया तो आपने देखी होंगी, लेकिन ये रेशम है क्या, जानते हैं सबा बजीर की इस रिपोर्ट में। रेशम का कीड़ा तितली की मानिंद होता है। उसके दो खानदान अहम है, एक बॉम्बीसिडाई और दूसरा स्टर्निडाई। ये अपनी अहमियत और अफादियत की बुनियाद पर सनत का दर्जा रखता है। इसकी अहमियत के पेश नज़र उसे क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहा जाता है। रेशम के कीड़े की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कीड़े के अंदर से रेशम निहायत बारीक, नाजुक और नफीस रेशे की शक्ल में निकलता है। इसका कीड़ा शहतूत के पत्तों पर परवरिश पाता है, जिससे कोकोन तैयार होता है और उससे रेशमी धागा बनता है, फिर उससे कपड़ा तैयार होता है। 5 मुख्तलिफ मराइल होते हैं इनकी ज़िंदगी के, जिनसे ये लार्वा की हालत में गुजरते हैं, और जिस वक्त 5वां मरहला इनका आता है तो चंद दिन खुराक खाने के बाद ये खुराक छोड़ देते हैं और कोकून बनाने के लिए जगह तलाश करना शुरू कर देते हैं। कोकून इनके गिर्द रेशम के धागे का एक खोल होता है। कश्मीर और पंजाब में रेशम के सनत को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता ये सनत सवाल पजीर हो रही है। ये अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, और अगर इसकी स्पॉन्सरशिप हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे प्राइवेट NGOs वगैरह हैं, और हमारा सबसे जो बड़ा इसका बेनिफिट है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। रेशम साजी कदीम तरीन और नफा बख्श सनत है जो कीड़ों की पैदाइश और उसकी नशोनुमा पर मुनहसर है। जदीद दौर के साथ साथ इसमें भी नित नए तजुर्बात हो रहे हैं। रेशम साजी की सबसे खास बात यह है कि देहात में उसे कम से कम लागत में शुरू किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा हासिल किया जा सकता है। तूत के फल हो, तूत की लकड़ी हो या तूत के पत्तों पर पलने वाले नन्हे नन्हे रेशम के कीड़े, ये दरख्त कुदरती सलाहियतों से मालामाल है और बहुत सारे लोगों के लिए बाइज्जत रोजगार फराहम करने का जरिया भी। कैमरामैन नफीस आराई के हमरा सबा वजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बख्तावर भुट्टो अपनी ढोलकी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के निकाह का जोड़ा ज़ेब-ए-तन करेंगी। बेनज़ीर भुट्टो के निकाह का लिबास कराची की रेशम रिवाज बुतिया शकील इस बुटीक में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मानिया बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के रेशम रिवाज बुटीक में मौजूद हूँ और यहाँ पे वो ड्रेस मौजूद है जो कि नुसरत भुट्टो साहिबा ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए पसंद किया था, उनकी निकाह पे पहनने के लिए। मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएंगे ये खूबसूरत हरे और गुलाबी रंग का जोड़ा जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने निकाह में ज़ेब-तन किया था। इस बुटीक के डिज़ाइनर से हमारी बात हुई और उनका कहना ये कि उनकी जो फीलिंग्स थी वो उस वक्त भी काफ़ी हाई थी कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए ये खूबसूरत लिबास जो है वो बनाएं। और क्योंकि नुसरत भुट्टो साहिबा ने ये इस जोड़े को पसंद किया, उसकी ख़ास बात ये थी कि इसका हरा रंग और इसका गुलाबी रंग, तो इस बुटीक में सबसे खूबसूरत जोड़ा नुसरत भुट्टो साहिबा को यही लगा था जो कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए पसंद किया और उसके बाद उन्होंने वो निकाह में ज़ेब-तन किया। यही सुनने में आता है कि बख्तावर भुट्टो साहिबा भी अपनी ढोलकी में यही जोड़ा ज़ेब-तन करने वाली हैं, लेकिन अब तक जो है उन्होंने इस बात की निशानदही तो नहीं की, लेकिन ये जोड़ा जो निकाह में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पहना था वो ज़रूर सबकी नज़रों में आया है फिर से, क्योंकि ये खूबसूरत जोड़ा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पर वाकई बहुत खूबसूरत नज़र आया। कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती उनकी खूबसूरती की। जो ये ड्रेस है जो उन्होंने पहना आज से 34 साल पहले 1987 में जब उनका निकाह हुआ, और आज भी उसका एक सैंपल जोड़ा जो है आज इस बुटीक में मौजूद है और इस बात की याद दिलाता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसा ग्रेस किसी का नहीं, लेकिन अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बख्तावर भुट्टो साहिबा भी शायद अपनी ढोलकी में यही जोड़ा ज़ेब-तन करें। मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, और इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।